We blame democracy if some expectations are not fulfilled, as I discussed. Okay, no government is foolproof solution provided to each and every problem. Even in our life also, even the genius person, he or she is not the best in each and every aspect. There are some loopholes in everyone's life. And that's why every child is best in one or the other. No two people are similar. One is good in maths, so another may be best in science. Again in science, very good command on chemistry, another may be having very good command on physics. Third may be very good in biology. So we cannot say that every child is best in all the areas. We see when the toppers from the different part of the country, different part of the society or district, when they come together at one platform, then from that the best comes out. So does that mean that a topper of a particular area now is a weak student? No. The level keeps on increasing, the testimony keeps on increasing, and the person who gives his best shot becomes the best or better than the other. And that's what democracy is all about. So, as I said, when somewhere democracy fails, we start blaming. We doubt on the working or the functioning of the democracy. It's not the best form or the better form of government. It does not solve or give solution to each and every question of the people. No. So, why? Because democracy is also just a form of government. It's not the Brahmastra. You hit and everything is finished. So all your problems are solved. No. Government just provide you the opportunity. You have to take the opportunity and convert it into a good result. Your teachers, they are just the facilitators, they are the guide. Getting good result, good marks, percentage is your responsibility. The management, the teachers, the parents, they are just the helping hand to you. They can show you what is right, what is incorrect. But to follow or not to follow is your responsibility. So similarly, democracy is not the solution of each and every. It provides the opportunity, political rights. Then why everyone is not coming into the politics? But everyone is ready to blame. So if you want to remove these challenges, these hurdles, why don't you enter into politics and make the democracy crime-free, corruption-free? But we as a human being, we love to criticize. Somewhere our nature becomes like a loser, that is finding the critics, not providing the solution. That is the character of the winners. I remember the quotations, right? Shiv Kheda once quote, winners do the things differently. They don't do different things. सॉरी कि विनर्स जो हैं एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से कर देते हैं, ना कि अलग अलग चीजें करते हैं, जबकि लूजर्स हर एक चीजों में नुस्ख ही निकालते हैं, फॉल्ट ही निकालते हैं, सॉल्यूशन पे कभी नहीं आते हैं. सो सेम एज अ पीपल ऑल्सो, वी जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग द लूप होल्स. अरे इसने ये बरोबर नहीं किया, उसने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला. Every time we just keep on expecting from the government how much we are doing to the country. Keep in mind,
ordinary or the common person or people have more important role to play in the ruling of the country. And awake citizens are the base for the development of a country. If everyone does their responsibilities, their duties 100%, within next 10 years, India will be the number one. But we are less bothered. We are कि कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, 20 लोग होंगे, उसमें से 15 लोग वीडियो बनाएंगे, हार्डली 2 लोग उसमें से हेल्प करेंगे, और मर गया तो बोलेंगे अरे सरकार की एम्बुलेंस की फैसिलिटी बहुत देर से आई, बेचारा मर गया. We have somewhere lost our culture, our humanity. Create only condition to achieve something. So as I said, democracy is not the Brahmastra. It gives you chance. You have to grab that chance and convert into a fruitful result. Citizens needs to, what they need to do? Take the advantage of those opportunities, try to achieve their goals. So as I said, democracy is just providing you the conditions, and as a active citizens, right, we need to take advantage of those opportunities. We need to take help of those opportunities and fulfill our goals. They are the helpers. So similarly, democracy is just like the helper, helping us to achieve our goals. It is not going to achieve the goal for you. आपको अपना गोल खुद ही. अगर लोगों को एक अच्छी सरकार चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए, बेहतर सरकार चाहिए, तो हमें हमारा रोल एक्टिवली पार्टिसिपेट करके करना पड़ेगा. If the government is not working properly, they are not coming to the expectation, time to time we need to knock them. You promised to do this, you haven't achieved. We can go for the signature campaign, we can go for the demonstration, there can be debates. But obvious, the government हिल जाएगी और लोगों के लिए काम करेगी. Democracy is accountable, responsive and legitimate government. That's what everyone believes and democracy is all about. But कहीं ना कहीं लोगों में हमेशा इन सब के ऊपर doubts रहता ही है. जैसे हमने डिस्कस किया कि by principle it is good, but practically it is not achievable. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है. So one by one we are going to learn कि how democracy is an accountable form of government, how democracy is a responsive form of government, and how democracy is a legitimate form of government. So one by one we will learn all the three conditions regarding the democracy. So condition number 1. So under that, democracy, what are the political outcomes of democracy? कि politically democracy कितना successful रही है अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल टर्म्स में अगर हम देखें, सो राइट टू चूज, डेमोक्रेसी जो है अपने सिटीजन्स को मौका देती है वो अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें. उनके इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो सरकार बनाए और देश को रूल करें. सो पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स. People have right to control their rulers. These rulers, if they are not coming to the expectation of the people, next time they will be thrown away. That's what right to participate in the decision making. Many a times the government, they take public opinion. So directly or indirectly, people are concerned in the decision making. And even in the parliament, we have 543 elected members in the Lok Sabha.
250 members in the Rajya Sabha. So they are the representing, right? So when it is discussed in a healthy manner and the best result comes, it is always welcomed by the people. So whether it is ruling party or opposition party, both the party has to play the role with sincerity and loyalty. And when both the party plays the role best, the best decision comes. Produce accountable, responsive and legitimate government. So when these things are achieved, then only we get the responsible and legitimate government. Accountable form. So as I said, okay, let's see how democracy can be considered as accountable form of government. So we know that people are the one who, as the definition goes, democracy is of the people, for the people and by the people. So people have the right to choose their representative. Their representative, they form the government. So as people have elected them, it means they are answerable to the people for each and every act the government or the party has done. Because people have given them opportunity, as our representative, you will be there in the governance. So whatever the decisions are taken, you need to think 100 or 1,000 times and then come to the decision. So whatever they do, they need to answer to the people. They need to respond to the needs of the people. Whatever the people ask for, the government has to respond to their needs. And they have to come to the expectation of the people. Legitimate, that is, to be people's true government, means you have to follow the procedure. Because by using the RTI, anytime anyone can use, how you have come to this conclusion? What procedures you have followed in taking this decision or giving this project to XYZ person or party? So if they are following legitimacy, transparency, following a wonderful and true procedure, anytime they can show it to the people. This is the procedure, the method we have followed to give this agreement or the contract to XYZ person. Democracy is a responsive form of government. How we can call it as responsive? So democratic government responds to the need of the people. So whatever the wish people ask from the government. So we all know the needs or the desire of the people is never going to come to an end. They keep on coming up with one or the other new desire or the wishes. So every time democracy has to try to come to the expectation and fulfill all the needs of the people. This can be done by pressure groups. We have learned in DP chapter number 1, a pressure group, and the chapter that we CBSE has deleted, that is popular struggle, in that detailed study is given. A pressure group means group of people, right, who have office. They come together, they create pressure on the government, that is by demonstration, signature campaign, strike, hartals. And when thousands and lakhs of people come on the road for demonstration, the government is pressurized to listen and work for the development of the people. So pressure group can play a very important role over here. And this is how we check whether government is functioning properly or not. This is where the popularity of its decision making comes into picture. So anytime we can challenge, and if the government is not responding to us positively, the next time thrown out. So that's why we say every vote
counts. Public opinion helps to check the popularity of it. So many times we see कि people they go to the, that is the media, they go to the people and they take public opinion. The public opinion is one of the base where we can check, one of the way how we can check the popularity, whether they are happy with the ruling functioning of the present government or not. So if the people are happy, it means the government is functioning well. There may be few loopholes, but again, after taking the opinions, the government can overcome those aspects of the areas. A government which responds to the grievances faster provides good governance. So generally people love that government only which quickly respond to their grievances, their problems. तो लोग उसी पार्टी को पसंद करते हैं जो उनके प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व करती है. Just giving example, you have seen the movie नायक of अनिल कपूर. In that एक दिन का सीएम, एक ही दिन में उसने देखो पूरा जो है महाराष्ट्र में चेंज ला दिया. So that is just we can say an idea कि अगर हर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करे तो बदलाव आएगा. और हर कोई इंसान कर ही सकता है. दैट इज जस्ट वी कैन से कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने सोसाइटी को आईना दिखाया है कि अगर आप एक्टिवली रोल प्ले करते हैं तो ये पॉसिबल है. एक आदर्श समाज, एक आदर्श सरकार और राम राज्य भारत में फिर से आ सकता है. Democracy is a legitimate form of government. How? So as we discuss, it is people's own government. यानी गलतियां होती हैं, ups and downs होती हैं, फिर भी पब्लिक डेमोक्रेसी को ही पसंद करती है. क्यों? क्योंकि दूसरे अल्टरनेटिव में जो चीज़ लोगों को यहाँ मिलती है वो नहीं मिलती है. तो नाराजगी रहती है, लोग थोड़े गुस्से होते हैं, बट फिर भी डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं. हो सकता है उसका प्रोसेस स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, कई बार रिस्पॉन्ड ना करती हो, बट हमें पता है कि ये हमारी पसंद की हुई सरकार है. तो हो सकता है शायद देर से आए पर दुरुस्त आए. कि जब एक बार काम करती है फिर लोगों के हित में ही काम करती है और एक प्रोसीजर फॉलो करके करती है ताकि कभी भी उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल ना उठ सके. इसीलिए उसको ओवरवेलमिंग सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री है कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट फिर भी दुनिया की सबसे लोकप्रिय फॉर्म ऑफ सरकार में मानी जाती है. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. It generate its own support, makes it more legitimate. यानी लोग चाहते हैं कि हमारे लीडर जिसको हमने पसंद किया है वही हमारा लीडर हो, वही हम पर रूल करे, हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले. क्यों? हमने उस पर विश्वास रखा है, अपना विश्वास दिखाया है. तो वही बंदा है जो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर काम करेगा और बेहतर काम करेगा. ये विश्वास जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही देखने को मिलता है और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता. इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पसंद की जाती है और लेजिटिमेट गिनी जाती है. We move to the next topic. Democracy may take time in decision making to follow procedure. यानी जो मैंने अभी पहले भी आपसे चर्चा की कि लोग कई बार डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया निशान कहते हैं कि वो लेस एफिशिएंट है, डिसीजन मेकिंग में स्लो है. तो वही कि बट सवाल उठता है
कि नो डाउट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फिर डिक्टेटर हो, मिलिट्री हो या मोनार्की हो, उसमें फटाफट डिसीजंस आ जाते हैं। क्यों? उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस मामले में शायद हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग नॉन डेमोक्रेटिक में फास्ट है। पर मेरा आपसे सवाल है कि गिने चुने 2-4 लोग या 10 लोगों के द्वारा लिया गया डिसीजन क्या हमारी करोड़ों की जनता उसे एक्सेप्ट करेगी? तो मेरा मानना है 90% नहीं। जो डिसीजन इन गिने चुने लोगों के द्वारा लिया जाएगा उसे ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जबकि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, बट उसे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा 10 दिन, 15 दिन, महीनों भर हर एक टेस्ट पर पास होना होता है। और जब दोनों हाउस में वो हर एक टेस्ट को या मैक्सिमम टेस्ट को पास करती है और मेजॉरिटी उसे पास कर देती है, तभी वो डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप मुझे बताइए, फटाफट डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है या स्लो बट बेटर डिसीजन जरूरी है? चॉइस आपकी, बट डेमोक्रेसी बेहतर है। सेकंड, मोर एक्सेप्टेड बाय द पीपल, जो मैंने आपको बताया कि डिसीजन शायद डिले हो, पर जब डेमोक्रेसी समय लेती है तो उसका डिसीजन हमेशा मोर देन 90% पब्लिक वेलकम करती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट। तो हमारे पसंद किए हुए लोगों को ही सरकार बनाने का मौका मिलता है, और हमने जिसे पसंद किया उसे पता है कि आज ये कुर्सी मेरी है, आज मैं एमपी हूँ या एमएलए हूँ, तो उसका कारण है जनता। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। तो अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा, मुझे दोबारा नेक्स्ट टर्म के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर बार बार जीतना है तो अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशन तक आना होगा। पीपल हैव चॉइस टू चेंज गवर्नमेंट इफ़ इट डज नॉट वर्क फॉर द सोसाइटी एंड वेलफेयर। तो जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आती है, तो लोगों के पास मौका है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरे किसी पार्टी को या व्यक्ति को मौका दे देंगे। Democracies are not appearing to be very successful in reducing economic inequality. ये सबसे बड़ा प्रश्न डेमोक्रेसी के लिए है, या मैं कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है कि हर कोई कहता है अरे यार सब बात सही है, पर मुझे बताओ डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कहाँ कम हो रही है? जीडीपी तो ग्रो हो रही है, पर अमीर अमीर है और गरीब गरीबी है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहाँ कम हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल आज डेमोक्रेसी के ऊपर है। तो लेट्स सी, डेमोक्रेसी हैव प्रोवाइडेड पॉलिटिकल इक्वालिटीज बट फेल टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश को पॉलिटिकल राइट्स मिली, हर एक सिटीजन्स को जो 18 एंड अबाउ है, मेल हो या फीमेल हो, उसे राइट टू वोट है, एंड 25 एंड अबाउ सो यू कैन स्टैंड फॉर एमपी और एमएलए। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी को स्टार्टिंग से ही ये पॉलिटिकल राइट्स मिला। बट आपको याद होगा कि BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमारे देश को पॉलिटिकल राइट्स तो मिल गई, सभी को पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, खासकर वो रेफर कर रहे थे हमारे बैकवर्ड सेक्शन को, SC ST एंड OBCs को, कि पॉलिटिकल राइट्स तो मिली, बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, कि जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलेगी तब तक हमारा देश वाकई में फ्री नहीं होगा। क्यों? समाज
दो पार्ट में डिवाइड होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा, तो उस पॉलिटिकल राइट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में तब्दील करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है प्रगति के पाथ पर चलेगा और उसकी जीडीपी रियली मायने में बेहतर गिनी जाएगी। स्मॉल परसेंटेज ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय ह्यूज वेल्थ एंड शेयर ऑफ नेशन। तो ये तो हकीकत ही है, राइट, कि आज हमारे देश का शायद 20% पॉपुलेशन जो है वो रिच सेक्शन गिनी जाती है, और अगर सर्वे कहा किया जाए या हो भी चुका है, उन्हीं के पास ही ज़्यादातर वेल्थ है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी है और ज़्यादातर राइट्स है। और इवन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स भी देखी जाए तो उनको ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। और इसमें पिसता कौन है? आम जनता और पुअर पीपल। और कई बार तो गवर्नमेंट शायद पॉलिसी बनाती भी है तो लोगों तक पहुंचती नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। और पॉलिटिकल पार्टी लीस्ट बॉदर्ड है कि वो लोगों तक पहुंचाए, बस बना दिया, दैट्स ऑल। इलेक्शन के टाइम पर हमने ये पॉलिसी बनाई, वो पर कितने लोगों को उसका फायदा मिला उसका आपने कहीं पर जिक्र नहीं किया। व्हाई डोंट दीज पॉलिटिकल पार्टीज जो भी स्कीम इंट्रोड्यूस करती है उसे लोगों तक पहुंचाए और देखे कि हर एक एरिया में विथ प्रॉपर प्रोसीजर लोगों को उसका लाभ मिले। किसी गवर्नमेंट पे डाउट नहीं है हमें, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स बनती है पर वो स्कीम जनता तक पहुंचती नहीं है या उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी ऑफिस में बैठे बैठे फालतू के काम से अगर लोगों को ये अवेयर कराए, प्रोसीजर क्या है वो कराएं, तो मैं गारंटी देता हूं अगली बार वो पार्टी या देयर विल बी टफ कंपटीशन अमंग द पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जनता कंफ्यूज रहेगी किस पार्टी को हम वोट दें, क्योंकि हर एक पार्टी इतनी हेल्दी कॉम्पीट कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। सो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 19-20। That's what we need to create in the society. Further, they have, तो इससे क्या हो जाता है समाज में, have and have nots की चीज हो जाती है, यानी अमीर और गरीब जो मैंने आपको बताया उसकी सिचुएशन अराइज हो जाती है। एंड इनकम जो है वो डिक्रीज, यानी जिसकी बढ़ रही है वो बढ़ती ही जा रही है और जिसकी घट रही है वो घटती ही जा रही है, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमारे समाज में देखने को मिलता है। इसी के कारण जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा फेल होती है और खासकर पुअर लोगों को जो है सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। रिपोर्ट सेज के अगर सर्वे जो किया गया है उसके अनुसार अगर हम देखें तो इंडिया कम्स ऑन द सेकंड रैंक इन द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखे कि सबको मिलता है या नहीं, तो उस मामले में इंडिया सेकंड रैंक पर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर, राइट। क्यों? 54% ऑफ द जो वेल्थ है वो अल्ट्रा रिच लोगों के पास है और बाकी जो बचा वो सब में डिवाइडेड है 80%। So somewhere it's truth. Poors are in large number. अब हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ही, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी इन आम लोगों को छोड़ती नहीं है। जब भी वोट का समय आता है उससे पहले से ही थोड़ा बहुत काम या दिखावा करना शुरू कर देती, क्योंकि जानती है कि ये गरीब हमारे समाज के ज़्यादा नंबर्स में है। आई वुड से 80% लोग जो है पुअर और मिडिल क्लास मिलाकर बनते हैं। तो अगर इनका वोट हमें नहीं मिलेगा तो हम जीतने वाले नहीं, हमारी सरकार बनने वाली नहीं। इसीलिए सभी पार्टी जो है वो हमेशा चाहती है कि इनका वोट हमें मिले, बट सिर्फ वोट तक ही सीमित रहती है।
उनकी प्रॉब्लम्स को या इश्यूज को सॉल्व करने की चिंता बहुत ही कम पार्टियां में है या बहुत ही कम पॉलिटिकल लीडर्स में है, राइट। तो आज का सिनारियो कैसा हो जाता है कि जब वोट्स चाहिए तो पार्टीज कहती है हम साथ साथ हैं, और एक बार इलेक्शन रिजल्ट आ गया, जीत गए हार गए जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सिनारियो हो जाता है कस्में वादे प्यार वफा के, वादे हैं वादों का क्या है, कि हमने वादा किया था एंड promises are meant to be broken, अब आप भूल जाइए, जाइए घर पर। That is the scenario after the result, and that's why again I say कि हमारा रोल रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वी आर एक्टिव। People of several nation are dependent on rich। अब कंडीशन क्या हो गई कि जब सरकार अच्छी तरह काम नहीं करती है तो बहुत सारे नेशन की ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाती है डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, उनकी जीवन जरूरियात चीज़ों के लिए। और उसका लाइव एग्जाम्पल है बांग्लादेश। उसकी 50% 50% पॉपुलेशन बांग्लादेश की बिलो पॉवर्टी लाइन में है। क्यों? कहीं ना कहीं सरकार फेल है, लोगों के से वोट मांगने के लिए आती है, नोट देने के लिए नहीं आती है। डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज। तो वी ऑल नो कि हमारे देश में जो है कितनी विभिन्नता है, बट फिर भी इन विभिन्नता में भी हमारे देश में एक एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसीलिए आज हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट स्पीडली डेवलप्ड होने वाला देश है। आज की जो सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं चाइना के साथ, इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हमारी सरकार को जाता है, जो इतना एक्टिवली वर्क कर रही है, इतने डाइवर्सिटीज को एक साथ लेकर चल रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश करके आगे बढ़ रही है। ये लोगों का प्यार है, सरकार का काम है, जो ये रिजल्ट प्रूव कर रही है। डेमोक्रेसीज डेवलप प्रोसीजर टू कंडक्ट their competition. This reduce possibility of tensions becoming violent। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंट रिलीजन है, कल्चर है, कास्ट है, रेस है, लैंग्वेज है। अब इन सब को सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती कि हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करती है, राइट, तौर तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, ताकि हर एक सेक्शन के लोगों को मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, पावर में आने के लिए, ताकि कल सवाल ना उठे और दंगा फसाद ना हो। हर कोई व्यक्ति सरकार के उस डिसीजन का सम्मान करे, पर कब? जब वो डिसीजन मेकिंग लेजिटिमेट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तब। और यही डेमोक्रेसी करती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी का पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इतना मान सम्मान है। दूसरा, नो सोसाइटी कैन प्रोवाइड परमानेंट सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। We learn to respect differences and can negotiate in these differences। तो हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि कोई भी सरकार जो है किसी हर एक मर्ज की दवा नहीं है, वो सिर्फ आपको एक जो है बेस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, आपको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच साथ साथ रहते हुए हमें हमारे डिफरेंसेस का मान सम्मान करना है। हमारे घर में ही हम देख लें
कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो सभी मेंबर्स एक साथ बैठकर डिसीजन लेते हैं, चर्चा करते हैं। कई बार हम सब पेरेंट्स के डिसीजन को या फादर के डिसीजन को या ग्रैंड पेरेंट्स के डिसीजन को 100% सपोर्ट करते हैं। कई बार होता है 30-70, कई बार 60-40 और कई बार 50-50 और कई बार हम अगेंस्ट होते हैं उनके। बट जब रिजल्ट बेहतर आता है तब हम उनका सम्मान करते हैं, या भले हमने उनको सपोर्ट नहीं किया बट स्टिल अवर रेस्पेक्ट फॉर देम रिमेन्स सेम। मन में थोड़ा रहता है कि इस बार पापा ने कैसे गलती कर दी, इस बार दादाजी ने कैसे ये डिसीजन ले लिया, थोड़ा कंसर्न रहता है, पर उससे हमारा कहीं मान सम्मान उनके लिए कम नहीं होता है। और हम हमेशा एज अ बैकबोन की तरह, सपोर्ट की तरह रहते हैं, वेदर वी एग्री और वी डिसएग्री। और यही डेमोक्रेसी में भी होता है कि डिफरेंट पार्टीज हैं, अब डिफरेंसेस रहते हैं, पर उन डिफरेंसेस के साथ हर एक पार्टी अपना रोल प्ले करती है देश के